Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In last lectures we discussed the general characters and economic importance of Cyanophyta, and today we will discuss the type nostoc in Cyanophyta. Systematic position of nostoc is it belongs to kingdom Bacteria, division Cyanobacteria, order Nostocales or Harmogonales, family Nostocaceae, and genus or type Nostoc. Nostoc is a genus of cyanobacteria and it consists of 29 species. The common species of Nostoc are Nostoc kenyum, Nostoc commune, Nostoc endophytum, Nostoc revulier, etc. Nostoc is found in a variety of environmental conditions or habitats, and it forms colonies which are composed of filaments of moniliform, means bead-like cells, and this colony is packed in the gelatinous sheath, यानी कि एक लेसदार म्यूसिलेजिनस जो शीट होती है उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है. This is a colony of Nostoc which consists of filaments, and these filaments are surrounded by the mucilaginous sheath. Habitat of Nostoc is that it is found in the soil on moist rocks, यानी कि जो rocks गीली होती हैं, wet होती हैं, and at the bottom of the lakes and springs, both which are fresh as well as contain salt water, and it's rarely found in marine habitats. And these form free floating balls in the freshwater bodies. Sometimes these balls may be attached to some object. मतलब ये वाटर के अंदर फ्रीली भी फ्लोट कर रही होती हैं और किसी न किसी चीज़ के साथ जो है वो अटैच्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं. These may also grow symbiotically within the tissues of plants such as hornworts. Hornworts is a group of bryophytes जिनकी प्लांट बॉडी जो है उसके अंदर जो है इसके जो कॉलोनीज हैं ग्रो करती हैं. And these Nostoc species, they provide nitrogen to its host through heterocysts, and then these heterocysts, these are terminally differentiated or as well as these are present inside the filaments. यानी heterocysts जो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, ये डिफरेंट साइज के सेल प्रेजेंट होते हैं नॉस्टॉक के फिलामेंट्स के अंदर, जिनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं. तो ये हेट्रोसिस्ट जो हैं टर्मिनल पोजीशन पर भी प्रेजेंट होते हैं और इनसाइड द फिलामेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट भी कहा जाता है. दिस द डायग्राम विच शोज द moist habitat of the Nostoc colonies in which the filaments are shown, और ये gelatinous material के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. These are also found as an algal component of some lichens. Lichens are the plants which are formed by the combination of the two components, जिसमें एक कंपोनेंट जो है एल्गल होता है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो फंगल होता है. तो उसमें लाइकन्स में एल्गल कंपोनेंट के तौर पर नॉस्टॉक भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लाइकन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन द ट्री ट्रंक्स, यानी दरख्तों के जो तने होते हैं उनके ऊपर भी पाए जाते हैं, जो मॉइस्ट रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होती है. दे फॉर्म म्यूकस और लेदरी आउटग्रोथ्स ऑन द ट्री ट्रंक्स. ट्री ट्रंक्स के ऊपर जो है वो गीले से, वेट से जो है वो आउटग्रोथ जो हैं इनके ऊपर लेदरी अपीयरेंस वाले आउटग्रोथ के तौर पर जो है ये प्रोड्यूस करते हैं. वहाँ पर ये रहते हैं, ग्रो करते हैं और वहाँ पर स्टे करते हैं. Now we will discuss the structure of the colony. Nostoc colony is seen on the ground in normal conditions. यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो है ये ग्राउंड के ऊपर आमतौर पर नज़र नहीं आती है. बट आफ्टर रेन इट स्वेल्स अप and forms the
prominent jelly-like mass, and therefore it was earlier thought that fallen they are fallen from the sky, और इसी वजह से इनको जो है फॉलन स्टार्स का नाम भी दिया जाता है अब भी, और जो है वो स्टार जेली भी जो है वो इनको कहा जाता है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड विच इज़ बटर जो है ये फंगी ग्रुप जो है उसमें किंगडम जो है उसके अंदर एक फैमिली है ट्रिमेलेसी, और उस फैमिली के अंदर एक जीनस के जो है वो स्पीशी है जिससे जो है वो रिजेंबल करती है उसको जो है वो इसी वजह से जो है वो इसको विचिस बटर का नाम भी जो है वो दिया जाता है। और इनकी कॉलोनी का जो साइज़ है यूजुअली ये हैंस एग के साइज़ के बराबर होता है, एंड दीज आर ऑलमोस्ट राउंडेड इन शेप। अब हम डायग्राम देखते हैं कि जिसमें हमें जो है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो हैंस एग साइज़ छोटे और बड़े जो है वो बॉल्स की फॉर्म में जो है वो नज़र आ रही हैं। बहुत सारी ये जो है बनी हुई हैं कॉलोनीज इसकी ग्रो हुई हुई हैं, और ये इस डायग्राम में जो है नेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो बिल्कुल जो है वो स्टार्स की फॉर्म में जो है वो नज़र आ रही हैं कॉलोनीज, और ये जिलेटिनस मटेरियल जो है वो उसके अंदर जो है वो इनके फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती है कॉलोनी। अगर हम एक कॉलोनी जो है उसको एनलार्ज करके जो है वो थोड़ा सा लो माइक्रोस्कोप में लो पावर में जो है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो ये कॉलोनीज जो हैं वो इस तरह से नज़र आती हैं कि इनके अंदर जो है वो थ्रेड का जो है एक नेटवर्क जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं बहुत सारे जो उनके फिलामेंट्स होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो जिलेटिनस बॉडी है इसके अंदर जो है वो बहुत सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज फिलामेंट्स विच कंसिस्ट ऑफ यूनिसीरिएट रो ऑफ सेल दीज आर नोन एज द ट्राइकोम्स। और कॉलोनी जो है उसमें जो है वो बहुत सारी जो है लार्ज अमाउंट में जिलेटिनस सब्सटेंस जो है वो सेक्रीट करती है, और जिसकी वजह से जो है वो एक जेली लाइक जो है वो कम्पैक्ट मैस जो है वो बन जाती है जिसको लंप भी कहा जाता है। और लार्ज नंबर ऑफ ट्राइकोम्स जो हैं इनके इर्द गिर्द अपनी जो है वो मिसलेजिनस शीट भी जो प्रेजेंट होती है, और ओवरऑल पूरी कॉलोनी में ये ऑल दीज फिलामेंट्स जो हैं ये ट्राइकोम्स जो हैं ये उस जिलेटिनस मैस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ईच ट्राइकोम इज़ अ सिंपल फ्री एंड ऑफन कर्व्ड और क्वाइल्ड, यानी कि कर्व फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं या क्वाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन ये अनब्रांच्ड होते हैं। And these are composed of bead-like cells, and these appear more densely populated towards the outer skin of the body, यानी कि कॉलोनी के अंदर बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें मिसलेजिनस शीट के अंदर ये आउटर साइड की तरफ जो है ये ज़्यादा फिलामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज फिलामेंट्स और ट्राइकोम्स दीज आर इन ग्रेट अबंडेंस, मीन बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं। एंड दे का स्लाइमी फील व्हेन द जिलेटिनस कॉलोनीज आर रप्चर्ड, जब उनको तोड़ा जाता है कॉलोनीज को ब्रेक हो जाती हैं तो ये जो फिलामेंट्स हैं इनके इर्द गिर्द भी जिलेटिनस शीट प्रेजेंट होती है, तो ये भी जो है वो स्लाइमी फील जो है वो देते हैं। Trichomes may contain one or more enlarged cells which are known as the heterocysts. Now this diagram shows many trichomes in which the cells are arranged in bead-like arrangement, और ये सेल जो है इनमें कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, कर्व मतलब कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन इनमें दे आर नॉट ब्रांच्ड। Now next diagram it shows the presence of the heterocysts at different points. The heterocysts which are present at the terminal position, these are known as the terminal heterocysts, and these heterocysts which are large in size as compared to the other vegetative cells, these are the which are present inside the filament, these are known as the intercalary filaments. This diagram it shows three filaments in which the large sized heterocysts are shown. Prominent heterocysts are present. This diagram is also a diagram of one filament
in which intercalary heterocysts are shown, and these are the normal vegetative cells, and all around all these cells जो है वो mucilaginous sheath जो है present है, and a trichome when it is surrounded by the mucilaginous sheath is known as the filament. Then now we will discuss the structure of the cells. As we have discussed in the general characters of cyanobacteria or cyanophyta, that the cell structure of these is prokaryotic in nature. Which are the different components of these cells we discuss here? First of all, each cell has outer cell wall, and this cell wall consists of three layers. Inner layer is thin cellular layer, means made up of cellulose. Medium layer is pectic layer, means made up of pectic substances, and the outer layer is mucilaginous layer or mucilage layer. The protoplasm of the cells is composed of mainly two parts. The peripheral part is called the chromoplasm, and it contains pigments. It is colored due to the presence of these pigments. लेकिन इसमें प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और ये जो पिगमेंट होते हैं ये थैलाकॉइड जो है वो उनके अंदर या लिमेला के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. नॉस्टॉक में जो है मतलब प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, और आउटर पार्ट जो है प्रोटोप्लाज्म का, जिसको भी हमने डिस्कस किया, इसको क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, जो कलर्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट्स. And then the second part, which is the central part, it is colorless, and it is known as the centroplasm, or it is also known as the central body, which contains the nucleus like material. क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो थ्रेड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसके ग्रैनुलर फॉर्म पे, और इसको जो है वो क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स भी जो है वो कहा जाता है. मतलब प्रॉपर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होते हैं, डेंस जो है वो ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल के. तो इसका जो प्रोटोप्लास्ट है उसके दो मेन पार्ट्स हैं, सेंट्रोप्लाज्म एंड द क्रोमोप्लाज्म. सेंट्रोप्लाज्म सेंट्रल और क्रोमोप्लाज्म आउटर पार्ट. In some colonies, pseudovacuoles are present, and their reserve food material is glycogen and oil droplets. हेट्रोसिस जो सेल प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर फिलामेंट्स में, जो कि अदर वेजिटेटिव सेल से जो है वो लार्जर साइज में होते हैं, स्ट्रक्चर भी उनका डिफरेंट होता है. तो इनमें जो है वो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, और उसके अलावा जो है ये रिप्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेट्रोसिस्ट. इसके अलावा सेल के अंदर जो है वो गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन देयर सेल्स बिकॉज दीज आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर. So all these membrane bounded structures are absent. Now we see the diagram showing the cell structure of the nostoc. The outermost layer is the cell wall. Then next to cell wall is cell membrane. Then inner protoplasm जो है it is divided into two parts. Peripheral part जो है this is chromoplasm. In this chromoplasm the photosynthetic lamella are present in which the pigments are present. Due to the presence of these pigments it is colored. And then next second part जो है inner part, central part जो है this is the centroplasm. एंड इन दिस सेंट्रोप्लाज्म डीएनए न्यूक्लियोइड जो है वो प्रेजेंट है, और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस जो है वो इसमें बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, राइबोसोम्स हैं और साइनोफिसिन ग्रैन्यूल्स हैं, वो जो है वो इसके अंदर जो है प्रेजेंट हैं. और इसके अलावा अराउंड दिस सेल्स आउटर टू सेल वॉल जो है म्यूसिलेजिनस शीथ जो है वो प्रेजेंट है. दिस डायग्राम शोज द हेट्रोसिस्ट सेल स्ट्रक्चर. इंटरकैलिड हेट्रोसिस जो फिलामेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, और इसमें जो है बैरल शेप जो है वो सेल्स होते हैं, और इसके दोनों एंड्स पर जो है वो दो साइड पर जो है वो थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको पोलर नोड्यूल्स कहा जाता है.
एंड दीज हेट्रोसिस्ट जो हैं दीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रिप्रोडक्शन। हेट्रोसिस्ट जो है लार्ज साइज़ के जो सेल्स होते हैं इनकी थिक वॉल होती है और यूजुअली ये सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं और रो में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये टर्मिनल भी हो सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, और इंटरकैलरी भी होते हैं। और हेट्रोसिस्ट जो है ये किस तरह से बनता है कि एनी ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल जो है मे डेवलप इनटू द हेट्रोसिस्ट, और कैसे बनता है कि इसका सेल जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक लेमेलर सिस्टम है वो डिसऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाता है और उसका आउटर एनवेलप जो वॉल है वो थिक हो जाती है। हेट्रोसिस्ट जो है ये जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ कंसर्न होते हैं और इसके अलावा जो है ये बनते कब हैं हेट्रोसिस्ट जो हैं, इसमें जनरली जब नाइट्रोजन लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है सर्टेन लेवल से, तो तब जो है वो जो है वो हेट्रोसिस्ट जो हैं दीज आर डेवलप्ड इनसाइड द फिलामेंट्स और ऑन द टर्मिनल पोजीशंस। दे आर ऑल्सो अ मीन्स ऑफ द कटिंग ऑफ हार्मोगोन्स। हार्मोगोन जो हैं ये शॉर्ट लेंथ जो है वो सेगमेंट्स या पीसीज ऑफ फिलामेंट्स होते हैं जो कि ट्राइकोम से जो है वो ब्रेक होने के बाद जो है वो बनते हैं और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। दिस डायग्राम is showing the cell structure as well as the few filaments in the colony. This colony is surrounded by the mucilaginous envelope, and inside this colony the filaments which are present have moniliform structure जिसमें bead like cell present है vegetative cells, और इन vegetative cell जो है उनके अंदर inside the filament जो है वो intercalary heterocyst present है। These are the intercalary heterocyst and this is the टर्मिनल हेट्रोसिस्ट जो कि फिलामेंट्स के टर्मिनल साइड पर जो प्रेजेंट है और ये इनमें जो है वो पोलर नोड्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन नोस्टॉक। इन नोस्टॉक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट रिपोर्टेड, it is not found because gamete formation does not occur. Nostoc reproduces only by the asexual methods. फर्स्ट मेथड जो है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उस वक्त तक होती है कॉलोनी में जब तक जो है वो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, और मॉइस्चर जब प्रेजेंट होती है तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है मेनली कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन से भी होती है कि कॉलोनी जो है इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट पीसीज एंड ईच पीस जो है may grow into a new colony. And when the moisture is disappeared, then many of the cells they form spores, और ये spores जो हैं वो blackish mass की फॉर्म में जो है वो नज़र आते हैं ड्राई वेदर में, जब जो है वो ड्राई कंडीशन आ जाती हैं, मॉइस्चर कम हो जाती है। These spores are capable of surviving drought and ultraviolet radiation in the summer. drought condition जब पानी की कमी हो जाती है, खुश्की आ जाती है, और ये जो है इन अनफेवरेबल कंडीशन जो है उनको सर्वाइव करते हैं उनमें, और फिर ये स्पोर्स जो हैं ग्रो करते हैं जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है और या रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, मॉइस्चर जो है वो रिस्टोर हो जाती है, तो देन दीज जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू कॉलोनीज। Another method is the hormone formation. It is the most common method of asexual reproduction in nostoc. Hormones are short-length filaments and they develop into larger lengths by the vegetative reproduction. This diagram it is showing the filament which has been broken at this place, and this is separated at this place, and two fragments में जो है ये कन्वर्ट हो गया है, दो फ्रेगमेंट जो है इसे प्रोड्यूस हो गए हैं, तो ये जो शॉर्ट लेंथ पीस है ईच पीस इज नाउ नोन एज द हार्मोगोन। दीज में बी प्रोड्यूस्ड एट द हेट्रोसिस्ट पॉइंट। और इसमें नेक्स्ट डायग्राम जो है इसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि ईच नोस्टॉक फिलामेंट जो है इट
if it is broken down at this heterocyst point, then it produces the two short pieces which are known as the harmogonia, and each harmogone जो है, it is grown into a new filament again on the growth, यानी कि इसमें जो है वो each हार्मोगोन जो है वो ग्रो करके जो है वो एक नया फिलामेंट दोबारा से बना देता है। हार्मोगोन की डेवलपमेंट यूजुअली जो है उन पॉइंट से होती है जहाँ पर जो है वो हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है, और हेट्रोसिस्ट जो है उसके अलावा हेट्रोसिस्ट जो है उसकी डेथ एंड डिके होती है, या वहाँ से सेपरेट हो जाता है फिलामेंट, दो पीसीज में डिवाइड हो जाता है, हार्मोगोन डेवलप होते हैं। या फिर जो हार्मोगोन है ये फिलामेंट जो है उसकी ब्रेक डाउन से, फिलामेंट कहीं से भी जो है ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी रीज़न से, या जो है वो किसी पॉइंट से सेल जो है उनकी डेथ एंड डिके हो जाती है, तो वहाँ से भी फिलामेंट जो है वो ब्रेक होकर न्यू शॉर्ट पीसीज जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिनको हार्मोगोन्स कहते हैं। हार्मोगोन्स जो हैं दिस में रिटेन जिलेटिनस एनवेलप, यानी कि उस जिलेटिनस एनवेलप जिसके अंदर पहले से प्रेजेंट थे उसी के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं, हो सकते हैं, या फिर जो है कुछ केसेस में हार्मोगोन जो है जिलेटिनस एनवेलप जो है, जिलेटिनस शीट जो है जो उनके इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है उससे बाहर आ जाते हैं और जो है वो न्यू कॉलोनी बना लेते हैं, डिवाइड होके ग्रोथ होके उनमें न्यू कॉलोनी बन जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये हार्मोगोन जो है वो कॉलोनी से बाहर नहीं आते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं, और वहीं पर जो है वो न्यू ट्राइकोम जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं पेरेंट कॉलोनी के अंदर। तो इसी वजह से बहुत सारी कॉलोनीज जो है वो उनके अंदर हमें जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ट्राइकोम्स जो हैं वो नज़र आते हैं एक ही कॉलोनी के अंदर। अनदर मेथड इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एकाइनेट्स, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो एकाइनेट्स के थ्रू होती है, जिनको आर्थ्रोस्पोर्स भी कहा जाता है। एकाइनेट्स जो है ये उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें जो है वो वेजिटेटिव सेल जो हैं ये जो है वो क्या करते हैं कि इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, और इनकी वॉल जो है वो थिक हो जाती है, और ये वॉल जो है वो 2 to 3 लेयर जो है वो थिक हो जाती है, और उनके अंदर जो है वो ग्रैनुलर प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एकाइनेट्स जो है दीज हैव रिजर्व्ड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ साइनोफिसियन स्टार्च ग्रेन्स, एंड एकाइनेट्स जो हैं ये जो है वो न्यू फिलामेंट्स ग्रोथ के बाद जो है जर्मिनेट करते हैं ऑन कमिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन। तो जर्मिनेट करने के बाद न्यू फिलामेंट्स जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, और एकाइनेट्स जो हैं ये ड्राई कंडीशन जो है उसमें सर्वाइव करते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं उसमें और सर्वाइव करते हैं। और जैसे ही जो है वो इनमें जो है वो रेन बारिश होती है, या जो है वो मॉइस्चर जो है वो मिल जाती है, तो ये जो है वो न्यू कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं ग्रो करके। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें एकाइनेट्स जो है वो उसका जर्मिनेशन, उसकी फॉर्मेशन और उसकी जर्मिनेशन जो है वो हमें दिखाई गई है। देखते हैं हम। दिस इज़ द फिलामेंट शोइंग द वेजिटेटिव सेल्स and under favorable conditions, and when the unfavorable condition the started, few cells in the filaments जो है रो में, कंटिन्यूस रो में, या जो है वो सिंगल फॉर्म में भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो सेल जो है वो एकाइनेट्स में इनका साइज़ जो है वो लार्ज हो जाता है, इनके अंदर फूड मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज़ इनका इंक्रीज़ होता है, और इनकी वॉल जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है। एंड दिस एकाइनेट्स जो हैं ये मेच्योर होते हैं, और इनके अंदर ग्रैनुलर जो है वो साइनोफिसिन जो ग्रैन्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये डॉर्मेंट हो जाते हैं, मीन्स के इनएक्टिव हो जाते हैं। और मेच्योर होने के बाद मेच्योर कंप्लीट एकाइनेट्स जो है जब बन जाते हैं, तो उसके बाद जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल रहती हैं ये जो है वो डॉर्मेंट रहते हैं, एंड व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल which are favorable for their germination, for their growth, then the dormancy is broken down। ये dormancy जो break होती है और मेरी germination start हो जाती है। The contents are divided into 2 into 4 and division is continued to produce the vegetative filaments। तो इस तरह से एकाइनेट्स जो है vegetative reproduction जो है
उस ये काइनेट्स की वजह से जो है वो होती है। देन अनदर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो हमने पहले भी पढ़ा कि हेट्रोसिस्ट की वजह से भी जो है वो रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प होती है। हेट्रोसिस्ट जो है ये रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड तो नहीं है, लेकिन नॉस्टॉक कम्यून जो है उसके अंदर हेट्रोसिस्ट जो है वो जर्मिनेट करते हैं और न्यू कॉलोनी जो है वो फॉर्म करते हैं। इसमें किस तरह से होती है जर्मिनेशन के हेट्रोसिस्ट के कंटेंट्स जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड करते हैं, देन 2 to 4 सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और इसमें जो है वो 4 सेल लॉन्ग स्मॉल फिलामेंट जो है प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं जर्मलिंग। तो हेट्रोसिस्ट की वॉल जो है वो रप्चर होती है या डिज़ोल्व हो जाती है और ये जो फिलामेंट है स्मॉल फिलामेंट जर्मलिंग जो है इट कम्स आउट फ्रॉम द हेट्रोसिस्ट एंड देन इट प्रोड्यूसेस द न्यू फिलामेंट। यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं, इसमें जो है वो एक हेट्रोसिस्ट जो है उसमें जो है वो डिवीजन दिखाई गई है। दिस इज द हेट्रोसिस्ट सेल, इसके कंटेंट जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हुए, देन 2 into 4 जो है वो सेल्स में प्रोड्यूस हुए और स्मॉल जो है वो फिलामेंट 4 सेल जर्मलिंग जो है वो प्रोड्यूस हुई और हेट्रोसिस्ट वॉल जो है वो ब्रेक होने के बाद दिस जो है वो स्मॉल फिलामेंट कम्स आउट एंड इट प्रोड्यूसेस द न्यू फिलामेंट। Then another method of reproduction is the endospore formation. Endospores may be formed in the nostoc commune and nostoc microscopicum. Endospores are formed by the division of contents of heterocyst and they come out and develop a new plants। यानी कि हेट्रोसिस्ट के जो contents हैं वो डिवाइड होके बहुत सारे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और ईच पार्ट जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ थिक वॉल्ड स्पोर जिनको हम एंडोस्पोर्स कहते हैं और ये जो है वो हेट्रोसिस्ट के अंदर रहते हैं और जब हेट्रोसिस्ट की वॉल जो है रप्चर होती है तो दीज आर रिलीज्ड आउट, दीज एंडोस्पोर्स आर रिलीज्ड आउट एंड ऑन डिवीजन दे प्रोड्यूस द न्यू फिलामेंट्स। These diagrams also showing the एकाइनेट जर्मिनेशन। एकाइनेट जो है उनकी जर्मिनेशन रो में प्रेजेंट है और उसकी जर्मिनेशन से जो है वो जो स्मॉल फिलामेंट प्रोड्यूस होता है हार्मोगोन भी उसको हम कह सकते हैं और फिर यहाँ पर जो है वो हेट्रोसिस्ट जो है वो उसके उसमें डिवीजन से जो है वो ये स्मॉल फिलामेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसको जर्मलिंग कहते हैं। हेट्रोसिस्ट की वॉल रप्चर होने के बाद जो है बाहर आ जाते हैं और न्यू फिलामेंट प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर जो है वो हेट्रोसिस्ट के कंटेंट जो है उनसे जो है वो एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं और ये एंडोस्पोर जो हैं ये आफ्टर रिलीजिंग थ्रू द हेट्रोसिस्ट्स दे कम आउट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू प्लांट बॉडी। नॉस्टॉक इज़ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जीनस क्योंकि नॉस्टॉक जो है उसमें प्रोटीन्स और विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है और इसमें जो है वो इसको फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से फूड स्टफ़ के तौर पर जो है वो कंज्यूम करने के लिए यूज़ करने के लिए इसको जो है वो कल्टीवेट भी किया जाता है नॉस्टॉक की स्पीशीज़ को प्राइमरीली जो है वो एशिया में। और नॉस्टॉक जो है फ्लैजिली फॉर्मी और नॉस्टॉक कम्यून वैरायटीज़ जो हैं इनको चाइना में, जापान में और जावा में जो है वो फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो है वो नॉस्टॉक कम्यून जो है वो इसको एंडीज़ में भी जो है वो फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है और जो है प्रिफर्ड वैरायटी इन सेंट्रल एशिया जो है वो नॉस्टॉक एलिप्सोस्पोरम है। इस तरह से चाइना में जो फूड के तौर पर नॉस्टॉक की जो स्पीशीज़ अबंडेंटली यूज़ होती हैं जो है वो नॉस्टॉक फ्लैजिली फॉर्मी है और इसको फैट कॉय भी कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। इसके अलावा यहाँ पर हम डायग्राम जो है वो देखते हैं दोबारा से जो है वो नॉस्टॉक के फिलामेंट्स की दिखाई गई है और कॉलोनी के बारे में जो मिसलेजिनस शीट के अंदर जो प्रेजेंट है फिलामेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो नॉस्टॉक टाइप के बारे में पढ़ा जिसमें उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, उसकी हैबिटेट के बारे में पढ़ा और उसकी जो है वो जनरल स्ट्रक्चर, कॉलोनी स्ट्रक्चर और जो है वो सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और उसके अलावा इसमें हमने जो है वो रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए।